अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो बात करेंगे किसानों के मसाइल के हवाले से। इस इशू को पहले भी कई बार उठा चुके हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो टस से मस नहीं होती। लेकिन हमारी कोशिश है कि हुकूमत जो है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो कभी ना कभी तो इस चीज़ का असर लें, उस पर नोटिस लें। तो किसानों से बात करते हैं, उनसे उनके मसाइल जानते हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, मैं उनसे ही जान लेती हूँ कि उनके मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि हुकूमत आपके लिए उस तरह से काम कर रही है जैसे किसानों के लिए करना चाहिए? ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੋ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੇ ਡਿਪੂ ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਖਾਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਝਾਲ ਦੇ ਜੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਬੋਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 10 ਕਾਰਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਯੂਸੀ 133 ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਸਲਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਨਵੇਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਵੀ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 200 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ, 270 ਰੁਪਏ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਆ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਰੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ। इससे पहले खाद का रेट क्या था? ਖਾਦ ਪਹਿਲੇ 1700 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਣਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, कितनी देर पहले? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ। ਜਦ ਕਣਕ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ 1700 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰ ਘੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਯੂਰੀਆ ਵੀ 1700 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਰੇ 2 ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਹੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਦ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਬੋਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, 2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इससे पहले भी जैसे कि हम ये अभी कह रहे हैं कि इस हुकूमत में खाद का थोड़ा सा मसला हो गया है। इससे पहले अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें, आप तो बड़े टाइम से यही काम कर रहे हैं, तो कभी पिछली हुकूमत में भी ये मसला आपको दरपेश आया? ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਹੀ ਅहम एक मसला। डेफिनेटली खाद जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ज़िम्मेदार के लिए, किसान के लिए। आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने अभी पिछली हुकूमत की बात की है, तो क्या किसान पिछली हुकूमत में खुश थे या कहेंगे अब खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान पिछली हुकूमत में भी ज़्यादा पिस रहा था, इस वक्त भी है। किसान को ना असल में सही ना मुआवजा मिलता है, ना सही टाइम पर कोई खाद स्प्रे मिलती है। अगर मिल भी जाए तो वो ब्लैक मेल मिलती है। जो स्टाक करते हैं वो ना, जो अगर 2500 की बोरी है तो 2600-2700 की देते हैं, और जो 10 बोरी की ज़रूरत है तो 2 बोरी या 1 बोरी देते हैं। इस वजह से ज़मींदार को सही वक्त पे खाद स्प्रे नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये वो सही पैदावार नहीं ले रहा। अच्छा, अगर हम MPS की बात करें, MPS तो ये कह देते हैं कि किसान जो हैं वो एवं रोना रो रहे हैं, किसान बहुत खुश हैं। नहीं, मुआवजा तो हुकूमत ने सही दे रही है हुकूमत, लेकिन अगर स्टॉक पे सही फसल बीजने के लिए बीज ना मिले, सही खाद ना मिले, सही उस वक्त वो पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मींदार की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन मुआवजा तो सही मिलता है। अगर मार्केट में जाए तो वो जो मंडी में होते हैं वो भी ज़मींदार को सही मुआवजा नहीं देते, कम देते हैं।
इस वजह से ज़िम्मेदार पिस रहा है, ज़िम्मेदार को सही। अगर ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि ना पिछली हुकूमत में आप लोगों को सुकून मिला, ना इस हुकूमत में कोई रिलीफ मिल रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी जो अगली नस्ल है, आपके जो बच्चे हैं, वो भी इसी को लेकर आगे चले, या चाहेंगे कि वो पढ़ लिख के किसी और जगह पर जाकर काम करें? ज़िम्मेदार के बच्चे ज़्यादातर तो रकबा भी कम रह गया ज़िम्मेदार के पास, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार के बच्चे बाहर ही जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है या कोई मुलाजमत कर रहा है। ज़िम्मेदार का बच्चा ज़्यादातर बाहर सर्विस के लिए इसका कोशिश। मतलब है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को ख़त्म होता देख रहे हैं आप? हाँ जी, ज़िम्मेदार को सही, एक तो रकबा कम रह गया ना ज़िम्मेदार के पास, जिसकी वजह से बच्चे सारे फैमिली का अखराजात नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से बाहर काम करना पड़ रहा है ज़िम्मेदार। अच्छा, ऐसा भी है कि गन्ने की काश्त अब ज़्यादा हो रही है कपास की निस्बत? गन्ने की काश्त इधर फैसलाबाद में ज़्यादा गन्ना काश्त हो रहा है, कपास की फसल कम होती है, लेकिन इधर ज़िम्मेदार को असल यही है कि रेट सही नहीं मिलता। ये अगर मिलता है तो वो कटौती बहुत करते हैं, मिल में चल जाए जो उसमें कटौती लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो 10 टन है तो वो 9 टन की कीमत मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या बेसिक मसाइल हैं किसानों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ये आवाज़ जो आला काम तक पहुँचा रहे हैं। छोटा ज़मींदार जो वो ज़्यादा पिस रहा है, इंतहाई छोटा ज़मींदार जो 3 से 5 एकड़ का ज़मींदार है, उसे वो इंतहाई मुश्किलात हालात में गुजारा कर रहा है। बड़ा ज़मींदार तो रिलीफ फिर भी ले लेता है, ऊपर जाता है, कुछ ना कुछ उसे ज़रूरी इलाज में रिलीफ मिल जाता है। उसके अलावा खाद बीज में स्प्रे में उसे रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ मिलता है, और वो किसी MP MNA या किसी भी आला हुकूमती अहदेदार या इंतज़ामिया से अपनी बात मनवा लेता है। हमें मुश्किलात सिर्फ, चूँकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, यहाँ छोटा ज़मींदार है जो बिल्कुल 3 एकड़ से 5 एकड़ का मालिक है, उसके पास 3-4 जानवर हैं, वो गोश्त पैदा करता है, दूध पैदा करता है, और वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। इस वक्त पंजाब में छोटा ज़मींदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत, जैसे जो जितने ज़राए हैं ना, बार बार ऐसे ही हालात होते हैं कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बाहर से गंदम मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ज़रा मुबादला तय कर रहे हैं, दालें मंगवा रहे हैं, कोई इस तरह की और चीज़ जिनसे बाहर से हम बरामद कर रहे हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर वही ज़मींदार को शेल्टर दिया जाए, उसे आला नस्ल का बीज दिया जाए, उसे स्प्रे अच्छी दी जाए, वक्त पे बीज दिया जाए और वक्त पे ही उसको स्प्रे मुहैया की जाए, खास वक्त पे मुहैया और कम कीमत पर रेट पे दिया जाए, तो वो जो ज़र मुबादला हम ज़ाया कर रहे हैं, हम रशियन रियासतों को जिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रूस, अफ़गानिस्तान, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं ना, उनको एक वक्त था हमारा कमाद का ज़्यादा वो हम पीड़ रहे थे बेलने पे, हमारा जो गुड़ था वो अफ़गानिस्तान जाता था और हम काफ़ी ज़र मुबादला कमाते थे। जंगी हालात होने की वजह से हमारा वो भी बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी हमें लास हुआ ज़मींदार को। इसके अलावा और मसाइल जो हमारे सर चढ़ कर बोल रहे हैं ना, वो यही हैं कि छोटा ज़मींदार जो छोटा, आजकल तो ज़्यादा जो आपका मसला वो खाद का ही चल रहा है, खाद नहीं मिल रही आप लोगों को। खाद का मसला मैं फिर वही कहूँगा कि मनसूई पैदा किया हुआ है, खाद का मसला नहीं है। जानबूझ के जो सरमायादार है, जो ताजर है, उसने जानबूझ के बंद किया हुआ है। क्यों? कि उसे अगर वो मार्केट में लेके आता है तो 50 से 100 रुपया फ़ी बोरी मिलता है, अगर वो ब्लैक में देता है तो कम से कम 500 से 700 रुपया फ़ी बोरी के हिसाब से ले रहा है। हमें इंतहाई मुश्किल हालात में छोड़ दिया है। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, इंतज़ामिया भी स्ट्रगल कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये जो छोटा ताजर, जो छोटा दुकानदार, उसे कंट्रोल में ना किया गया, उसे जुर्माना करने से कुछ नहीं होता। जुर्माना मैंने देखा है, ज़मींदार उनको जुर्माना होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, कल आधे दिन में मेरी जो सेल होगी वो जुर्माने में चली जाएगी, कोई बात नहीं। उन्हें ऐसा कड़ी से कड़ी कोई तजवीज़ करे उसके लिए एक सज़ा कि कम से कम वो मार्केट में चीज़ लेके आए। मैं बहुत छोटा था, मुझे अभी भी याद है कि नवाब ऑफ काला बाग उस वक्त गंदम का ऐसे ही बुखरान पैदा हुआ था, उसने एक ही बात बोली थी सरमायादार को कि जाएं आप, कल 10 बजे तक रोड पे गंदम होनी चाहिए, दुकानों में नहीं, रोड पे होनी चाहिए। और हम बिल्कुल बच्चे थे, छोटे थे,
बिल्कुल रोड पे गंदम आ गई थी। ऐसे ही हालात इन लोगों ने मनसूई पैदा किए हुए हैं, जानबूझ के ये हम ज़िम्मेदारों को तंग करते हैं। जो हमारा सही प्रॉफिट होता है ये छोटा ताजर जो स्प्रे मुहैया में करता है वो ले जाता है, खाद वाला ले जाता है, बीज वाला ले जाता है। तो कपास का बहरान पैदा करने वाले हम खुद नहीं है, क्योंकि देखें अब ज़्यादा ये हो रहा है ना कि गन्ने की काश्त हो रही है, कपास उसमें से काश्त नहीं हो रही, इसलिए उसका बहरान पैदा हो रहा है। पे बात करूँगा, हमारा जो मुल्क है ज़रई मुल्क है, कुदरत खुदा की कि अगर हम नारोवाल से चलते हैं ना तो मैं टिपिकल तरीके से बता सकता हूँ कि सांगले तक आते हुए मुंजी का एरिया है। कुदरत ने फ़ज़ा में ऐसे लवाजमात मुंजी के लिए पैदा किए हैं, अगर वहाँ हम कमात काश्त करेंगे तो नहीं होगा, मुंजी होगी। ऐसे ही आगे आएंगे, सांगले से आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, जंग, टोबा, चन्योड़, ये जो 3-4 ज़िले हैं ये कमात के लिए बहुत इंतहाई मौजू हैं। इससे आगे चीचावतनी की तरफ साइड पे चले जाएंगे, जनूबी पंजाब की साइड पे, वहाँ हालात मौसमात ऐसे हैं कि वो कपास पैदा करते हैं। हमें इंतहाई दुख से ये बात करनी पड़ती है कि चीचावतनी से लेकर सादकाबाद तक का अगर वही एरिया कपास पैदा करने वाला वहाँ आप जाके लगा देंगे, मिलें लगा देंगे कि शुगर मिलें लगा देंगे, तो क्या वो लोग कपास काश्त करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उन्हें अच्छा मुआवजा मिल रहा है कमात में। मैं यही गवर्नमेंट आपके मीडिया की वसालत से गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करूँगा, इन लोगों ने साहबका जो लोग थे गवर्नमेंट में उन्होंने चीटें की हमारे ज़िम्मेदारों से, हमारा पैसा दबाया और दबा के ये ले के आगे चले गए। बिल्कुल ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो सुने। किसानों से तो हमने बात की, किसान रहनुमाओं से भी बात करेंगे, अभी वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है अब्दुल रहमान, मैं उनसे बात करूंगी। अब्दुल रहमान, किसानों से हमने बात की है, किसान काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और हमेशा यही गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि ना पिछली हुकूमतों ने उनका ख्याल किया था, ना ये हुकूमत उनका ख्याल करती है, ना ही पॉलिसी बनाती है। तो आखिर वजह क्या है? किसान की परेशानी का हल हुकूमत ने नहीं निकालना तो किसने निकालना है? थैंक यू सदफ। देखिए ये एक बड़ा मसला है कि किसानों के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ का दौर भी अच्छा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निस्बतन अच्छा रहा है, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें मौजूदा 3 सालों की तो यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो मुल्क में जो महंगाई की लहर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पैदावारी लागत भी बढ़नी शुरू हो गई। देखिए कि जो चीज़ पहले जितनी कीमत में आती थी वो 200% तक बढ़ती चली गई। उसका नतीजा ये निकला कि सीड भी महंगा हुआ। फिर जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो उसका नतीजा ये निकला कि किसान जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, मशीनरी इस्तेमाल करता है, ये महंगी हो गई। इसी तरह से हम बिजली अगर महंगी हुई है तो वो ट्यूबवेल भी उसका महंगा हो गया। तो ये किसान के लिए दोहरा मसला ये बना कि पैदावारी लागत बढ़ी। हाँ, उसका फ़ायदा उससे ये हुआ कि उसने जो इजनास उठाई है उसने वो महंगे दामों बेची, नतीजातन फिर महंगाई आई और जो चीज़ उसने बेच कर महंगे दामों वापस ली वो फिर उसको सीड महंगे दामों मिला। यूँ एक इस तरह से यहाँ पर चेन चक्कर बन गया कि किसान बेचारा दोनों हाथों से फंस गया। वो चीज़ महंगी बेचता है, कमाद में उसने अच्छा पैसा कमाया, गंदम में कमाया, इसके अलावा दूसरी फसलों में पैसा कमाया, लेकिन जो मुल्क में जारी महंगाई की लहर है उसमें वो भी फंस गया। इसी चक्कर में उससे पैदावारी लागत ही पूरी नहीं हो रही, बीज पूरा नहीं हो रहा। फिर स्पेशली जो आपने खाद का बहरान देखा है उस पर आपने प्रोग्राम भी किए, मामला हाईलाइट भी किया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर तस्लीम ही ना करें कि ये कोई मसला है तो फिर उसका हल कैसे निकाला जा सकता है? जब तक किसानों को एक ऐसा मजलूम तस्लीम नहीं किया जाएगा कि उनके लिए मसले है, तब तक उसका हल कैसे निकल सकता है? मुझे ये भी बताएं कि कपास और बीज इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ती है? देखिए सदफ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर मसला हमारे ये है कि कपास के लिए हम सब्सिडी नहीं देते किसानों को ना, लगाने के लिए उन्हें रहनुमाई नहीं देते। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाद लगा दिया जाता है, गन्ना लगाने से हम नहीं रोकते। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी सबसे अहम फसल कपास है वो कम हो जाती है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है और उसके लिए कई अरब डॉलर लगाना पड़ते हैं। हमने पिछले साल 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है और अभी शायद हमें मज़ीद इंपोर्ट करनी पड़े। और इसी तरह से अगर आपने बीजों की बात की, देखें ये मिर्च, हरी मिर्च 1 अरब रुपए की, उसके हम बीज 1 साल में खा गए। या अदरक हमें कई अरब रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ती है, सब्जियां, दालें हमें अरबों रुपए की इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, फिर इनके जो सीड है वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसकी ये भी वजह है कि पहले माजी में जब इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक थे
तो बहुत सारे सीड हमें इंडिया से सस्ते मिल जाते थे और हम यहाँ पर नहीं लगाते थे। अब जब ताल्लुकात ख़राब हुए, दूसरे ममालिक से मंगवाना पड़ते हैं तो वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, उस पर ड्यूटियाँ भी है, इंपोर्ट भी है, GST भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो ज़्यादा महंगी हो गई। ऑयल सीड्स हमें बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ये खुर्दनी अजनास का जो बजट है ये 300-400 अरब रुपया बन जाता है, और ये पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दूसरा बड़ा बजट है जो हमें देना पड़ता है। तो ये कहने को ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद जो सूरत हाल ये बनी हुई है कि कुछ 10 अरब डॉलर की जो फूड्स आइटम्स हैं वो हमने सिर्फ 1 साल में बाहर से मंगवाई हैं। हुकूमत क्या करती है कि ये सब्सिडी जो 10 अरब डॉलर बाहर के ममालिक को दिया जाता है, अगर इसका निसफ भी अपने किसानों को दिया जाए तो ये तमाम चीज़ें यहीं पैदा हो सकती हैं। किसान रवायती काश्तकारी से गैर रवायती काश्तकारी की तरफ मूव क्यों नहीं करता, इसकी क्या वजह समझते हैं? सदफ कर सकता है, मैकेनाइज इसको किया जा सकता है। देखिए, अगर मशीनों पर आप सब्सिडी देते हैं, अगर आप ट्रैक्टर सब्सिडी पर देते हैं, अगर आप ट्यूबवेल सब्सिडाइज़ करते हैं, अगर आप तमाम मशीनरी, जदीद बीज और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी उसकी सहूलियात बाहर से मंगवा के उसको टैक्स फ्री करते हैं और ट्यूबवेल पर उसको सब्सिडी देते हैं, तो वो जो है वो मॉडर्न जितनी भी एग्रीकल्चर है उसको अपना सकता है। अगर उसने तमाम चीज़ें बाहर से खुद मंगवानी है, खुद लगानी है, तो फिर वो कैसे मॉडर्न बनेगा? देखें, अगर आप यहाँ पर टनल फार्मिंग की बात कर लें, जो जदीद ज़राअत है, उसमें 30 लाख रुपया 1 एकड़ का ख़र्चा आ जाता है। वो देखिए, अगर इसमें हाफ भी हुकूमत बर्दाश्त करती है, या अब एक खाला होता है जो अगर उसको पक्का कर ले तो पानी की बचत 50% तक हो जाती है, लेकिन उस पर जो खर्चा आएगा वो किसान कहाँ से देगा? इस तरह से कई चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत अगर ये तमाम पैसे इन्वेस्ट करे तो किसान जो है वो जदीद मशीनरी को भी ले सकता है, जदीद बीज को भी ले सकता है, सर्टिफाइड बीज को, और मैकेनाइज हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है किसान और हुकूमत मिलकर बैठें, प्लान करें, और जो रिसर्च पर यूब रिसर्च महकमा ज़राअत को पैसे दिए जा रहे हैं वो बराह रास्त किसानों को दिए जाएँ। हुकूमती पॉलिसी क्या है ज़राअत के हवाले से? क्योंकि देखा जाए किसान के नज़दीक या अहदेदार जो उनके नज़दीक कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती हुकूमत की तरफ। देखिए, हुकूमती पॉलिसी बहुत अच्छी हैं, बहुत अपनी तरफ से काम करते हैं, लेकिन वो सुर्ख फीते की नज़र हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी बैठी हुई है कि वो समरात नीचे तक नहीं जाने देते। देखिए, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो अब जो है वो जाके कीमतें भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो कीमतों के हवाले से इजलास है उधर भी बैठे हुए हैं, दूसरी मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं। तो उनको कई तरह से कामों में जो है वो, अभी खाद के हवाले से देख लें कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो खाद पूरी करें। देखें, ये हुकूमत का काम है, ज़िले इंतज़ामिया का काम है, वो अपने काम जो है वो अपने से हटाकर वो एग्रीकल्चर ऑफिसर को दे दिए गए हैं। तो इनको बराह रास्त सब्सिडी देनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। देखें, किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया और खाद पर 500 रुपये सब्सिडी रखी और खाद नायाब हो गई, हज़ारों रुपए महंगी लेनी पड़ती है। वो क्या करनी है सब्सिडी? अगर वही चीज़ें मार्केट में हुकूमती रेट्स पर मिले तो सब्सिडी देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वही सीड जो बाहर से महंगा लेना पड़ता है और फिर अगर इंपोर्ट भी उसमें डाल ली जाए, ड्यूटीज़ भी डाल ली जाए, तो इतना महंगा हो जाता है। और वही अगर अयूब रिसर्च या इनके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर सस्ते दामों मुहैया करें और ज़्यादा जो क्वांटिटी में करें तो ये तमाम मसले हल हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे, किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर किसानों के मसाइल हल कैसे किए जा सकते हैं। अभी मेरे साथ किसान रहनुमा मौजूद है मियाँ रेहानुल हक साहब, मैं उनसे बात करूँगी। तो आपसे मैं ओवरऑल ये जानना चाहूँगी, आप इस वक्त क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में ज़राअत के हवाले से उस तरह से काम हो रहा है, क्या हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो पिछले कई दहाइयों से जितना इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है या मुश्किलात का शिकार है, इससे पहले कभी नहीं रही। अब मामला ये है कि पहले तो हमें खादों में सब्सिडी भी दी जाती थी, बीज में सब्सिडी दी जाती थी, डीज़ल में, और इसका अलावा जो हमारे जो ज़राई ट्यूबवेल थे उन पे सब्सिडी थी, 5 रुपये रेट मुकर्रर था पर यूनिट का। और उसके अलावा बहुत सारी और हमारे जो इनपुट्स थे उन पे हमें सब्सिडी मिलती थी। मगर ये मौजूदा हुकूमत ने तो ये तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करके अब ये किया है कि फ़्लैट रेट्स, बल्कि इतनी महंगाई हो गई है कि अब सर्वाइवल जो है किसान का और ज़मींदार का वो मुश्किल होता जा रहा है। खादों का बहरान अपनी जगह है, डीज़ल महंगा है वो अपनी जगह पे है, उसके अलावा जितनी भी हमारी इनपुट्स हैं उस पे अब जो है वो किसान को इतना भारी पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि वो अब सोचने पे मजबूर हो गया है कि इतनी महंगी ज़राअत उसके बस की बात नहीं है, वो ज़राअत छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दे। अब मामला हुकूमती जो है वो ये है कि हुकूमत इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही।
ज़बानी जमा खर्च तो ज़रूर कर रही है, कुछ वो अनाउंसमेंट भी कर रही है कि जनाब हम ये रिलीफ देंगे किसानों को, वो रिलीफ देंगे, मगर ऑन द ग्राउंड कोई रिलीफ हमें मुयस्सर नहीं है। अच्छा, खाद की जैसे कि आपने बात की, क्या अभी भी वही सिचुएशन चल रही है जो तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पहले थी? पहले से ज़्यादा अब अबतर हालत है। पहले तो हमें 1-2 बैग कहीं ना कहीं से मिल जाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल रहे। खाद बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुकी है, किसी भी किस्म की खाद। अब हाल ये है कि हमारी फसलें जो हैं पक्के अपना इस वक्त वो ग्रोथ की स्टेज पे हैं। गंदम को खाद की अशद ज़रूरत है, हमारी बाकी फसला जो रबी की हैं उनको खाद की असल ज़रूरत है, मगर इस वक्त खाद अवेलेबल नहीं है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो आने वाली फसल पे, इसकी पैदावार पे होगा। अब गंदम की पैदावार जो हो खाद की स्टेज से गुजरती जा रही है, अब वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। अच्छा, इसकी प्राइस के बारे में भी थोड़ा बताएगा कि इसकी प्राइस पहले कितनी थी, अब कितनी है? 1780 रुपये गवर्नमेंट ने खाद की प्राइस मुकर्रर की हुई है, मगर इस वक्त जो यूरिया खाद है वो हमें 3000 रुपये बैग में भी नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि चलो हमें महंगी मिल जाए, हम अपनी फसल को कुछ ना कुछ तो डालें खाद, मगर इस वक्त खाद की जो है दस्तयाबी वो नामुमकिन है। अगर हम अपने मुल्क में ओवरऑल काश्त की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ समझते हैं कि ज़्यादा काश्त होती हैं और हमें उन चीज़ों से हट कर भी दूसरी चीज़ों की तरफ मूव करना चाहिए? बात यह है कि हमारा मुल्क एक रवायती ज़रई मुल्क है। हमारे पास चूँकि इतने सोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करें या पुराना अपना रवायती तरीका इस्तेमाल करें। उस रवायती तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो हमारी पुरानी फसलात हैं, जिनमें कमाद है, जिनमें कपास है, जिनमें चावल हैं, जिसमें गंदम है, जिसमें मकई है, या जिसमें बाजरा वगैरह या कुछ और ऐसी तेलदार अजनास हैं या सब्ज़ियात हैं, वो हम अभी तक उसी डगर पे हैं, उसी तरीके पे काश्त कर रहे हैं जिस तरह हम पहले करते थे। मगर जब हमें पिछले कोई 10-15 साल पहले कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया था, हमें सब्सिडीज़ दी गई थी और हमने कुछ अपने मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स ख़रीदे थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा रुझान हुआ था। कुछ वो जो चैम्बर्स बने थे जो हमारे होते हैं, जिस तरह हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ड्रिप इरीगेशन आई थी, मगर वो अब दिन ब दिन फिर ख़त्म होती जा रही, क्योंकि उस पर अखराजात इतने ज़्यादा उठते हैं कि किसान की पहुंच से दूर हैं वो। अच्छा, कपास की जो काश्त है वो क्यों कम होती जा रही है? उसकी जगह जो गन्ने की काश्त है उसने क्यों ले लिया? उसमें एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट का इशू ये है कि गवर्नमेंट ने किया क्या है कि इसकी जोनिंग कंप्लीट ख़त्म कर दी है। होता यूँ था कि पहले गन्ने के इलाके मखसूस थे, कपास के इलाके मखसूस थे। जो कपास के इलाके थे वहाँ गन्ना काश्त नहीं हो सकता था, जहाँ गन्ने के इलाके थे वहाँ कपास काश्त नहीं हो सकती थी। मगर हमारे चंद ऐसे बहुत हकूमती ओहदेदारों ने या जो बासर अफराद थे, उन्होंने किया क्या कि वहाँ जो कपास का इलाका था वहाँ जाके शुगर मिलें लगानी शुरू कर दी। लोगों और कपास का बहरान भी पैदा हो गया। बाहर से हमने कोई बीज ऐसा इंपोर्ट कर लिया जिसमें बीमारी थी और हमारी कपास की फसल को बीमारियां शुरू हो गई। अब कपास की फसल पे ज़्यादा अखराजात आते थे, उसकी इनकम कम थी, और कमाद की इनकम ज़्यादा थी, और कमाद उन इलाकों में भी काश्त होना शुरू हो गया जो कपास के इलाका जात थे। अब फिर लोगों ने वो छोड़ के कपास को कमाद पे तरजीह दी, और अब वो कमाद जो है वो भी अब वो इन्हतात का शिकार इस वजह से है कि शुगर मिलों ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। अब जो गन्ने का काश्तकार है वो भी परेशान है। अच्छा, ज़राअत के हवाले से अगर हम पॉलिसी की बात करें, हुकूमत की एक तो पॉलिसी अगर है तो क्या आप उससे मुतमईन हैं, और अगर नहीं है तो क्या समझते हैं क्यों नहीं है? हुकूमत की पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं। ज़राअत को बिल्कुल हुकूमत ने इग्नोर किया हुआ है। ख़ासकर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ज़िम्मेदार इसकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। किसान जो है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है। किसान को किसी किस्म की कोई सहूलत जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जिस वजह से किसान अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियत पैदा करने से भी कासर है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि अभी तो बेशक हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं किया गया, आने वाले टाइम में देखते हैं कि हुकूमत इस पर थोड़ा फोकस करेगी। अगर तो ऐसे ही हालात रहे जिस तरह चल रहे हैं तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से कि हुकूमत हमें ज़िम्मेदार को या किसी भी किसान को किसी किस्म का कोई फ़ायदा देने के हक़ में है। इसकी वजह क्या समझते हैं, आखिर हुकूमत क्यों इग्नोर कर रही है? हुकूमत इसलिए इग्नोर कर रही है कि हुकूमत में इस वक्त जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी मेकर जो हैं वो जिसे पंजाबी में कहते हैं डंग टपाउट पॉलिसी, उस पर कारआमद हैं, अमल पैरा हैं, और कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी नहीं है। क्योंकि ज़िम्मेदार को लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। इसकी जो इनपुट्स हैं, जो इनकी जो वो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती होनी चाहिए, खाद सस्ती होनी चाहिए, बीज सस्ता होना चाहिए, डीज़ल सस्ता होना चाहिए, बिजली के रेट्स कम
होने चाहिए। उसके अलावा फिर जब ये फसल काश्त करता है उसकी फसल के रेट्स अच्छे होने चाहिए ताकि इसको पैदावार में कुछ ना कुछ आसानियाँ और कुछ मुनाफा मिले, ताकि आइंदा पैदावार जो है नई फसलात लगाने के लिए उसके पास कोई सोर्सेज हों। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी भी शोबे में बेहतरी चाहिए तो एक तो ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, जिस पर अभी तक हुकूमत काम नहीं कर सकी। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो किसानों के मसाइल के हवाले से बात हो रही है, तो मेरे साथ सीड स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर काशिफ। मैं उनसे बात करूंगी। काशिफ साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि बीज ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, इंपोर्ट करना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से थोड़ा सा हम गलत फहमी का शिकार हैं। बहुत मखसूस कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके हवाले से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और उनको टैकल करने के लिए नेशनल कंपनीज़ ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारा कॉर्न सीड का बहुत बड़ा एक इंपोर्ट बिल था। इसमें जहाँ तक तो इसका सेगमेंट आता है नॉर्मल, जिसे हम मौसमी मकई कहते हैं, तो उसमें इसका 50% शेयर जो है ऑलरेडी हमारी नेशनल सेक्टर ने, नेशनल कंपनी जो है यहाँ की हमारी लोकल, उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया हुआ है। उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर उसमें बहारिया में देखें, उसमें हमारा शेयर कम है, लेकिन उसमें बहुत तेज़ी के साथ हमारा जो लोकल सेक्टर है, लोकल सीड सेक्टर है, बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स की सीड की प्रोडक्शन हमारे यहीं पे लोकल लेवल पे हो रही है। तो लेकिन ऑयल सीड के हवाले से या कुछ माइनर क्रॉप्स हैं जिस हवाले से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी हमारा एक बहुत पॉजिटिव जो एटीट्यूड सामने आया है हमारी नेशनल और लोकल कंपनीज़ का, कि उन्होंने पिछले 10 साल में बड़ी तेज़ी के साथ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स जो हैं इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप बीज कह रहे हैं पैदा होने के या बनने के प्रोसीजर अब शुरू हुआ, इससे पहले तो बाहर से ही आता रहा है? जी ऑब्वियसली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उनके पास ही मेजर शेयर रहा है, जितनी भी हमारी चंद 1-2-3 क्रॉप्स को छोड़ के। लेकिन अब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा यहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे जैसे लोग अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो ये बेस होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च R&D विंग्स जो थे पहले हमारे नेशनल या लोकल कंपनीज़ के पास बहुत कम थे। अब बहुत तेज़ी के साथ हमारी जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने R&D विंग्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है। यहाँ पर रिसर्च शुरू हुई है, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के कम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट के कम्पिटिटिव जो सीड्स हैं अब यहाँ पे हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि आने वाले कितने टाइम में अब हमें बाहर से कम बीज इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा? जहाँ तक तो इंपोर्ट की बात है, तो इसे बिल्कुल ख़त्म करना तो शायद दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। हम तो फिर एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं। तो लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अगले 5 साल में हमारा जो शेयर है लोकल सीड इंडस्ट्री का वो मैक्सिमम हो जाएगा, और बहुत कम कुछ रह जाएंगे कुछ सेगमेंट्स ऐसे जहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। नो डाउट हर किस्म का सीड, हर चीज़ जो है हर मुल्क में पैदा करना मुश्किल है। फिर जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, हमारे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ऑब्वियसली सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं, उनके R&D विंग्स जो हैं, उनका जो बजट्स हैं, ऑब्वियसली उनकी एक एक कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अपने रिसर्च पे बजट लगा रही है। उनको कम्पीट करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से हम उनको कम्पीट कर रहे हैं। किसानों का एक ये बड़ा घेला होता है कि जो हमें बीज है वो सस्ता नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है? जहाँ तक तो सस्ते बीज की बात है, तो जब भी किसी हम सिर्फ बीज की बात नहीं, आप किसी भी कमोडिटी में चले जाएंगे, जब आप सस्ते की तरफ जाएंगे तो आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि अगर सीड का रेट बढ़ रहा है, तो जिस क्रॉप का सीड है जब उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, तो एट द सेम टाइम हम गंदम की मिसाल ले लेते हैं। अगर गंदम की सीड का रेट बढ़ा है तो गंदम का रेट भी 1400 से 1800 पे चला गया। अब 1800 में अवेलेबल नहीं है। अगर एक सीड कंपनी 2000, 2200 या 2400 में सीड परचेज़ कर रही है, गंदम की परचेज़ कर रही है सीड क्वालिटी की, तो जब उसको हम लेके सीड सेल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो गैप है 1000 रुपये का, वो सीड में भी एट द सेम टाइम एंटर हो जाएगा। तो जहाँ तक ये महंगे होने की बात है, तो महंगा नहीं है। ऑलरेडी महंगाई हर लेवल पे चूँकि बढ़ी है, तो वो पाकिस्तान का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जो इससे महफूज रहा हो। अभी एक बहुत बड़ा जो सेटबैक हमारी एग्रीकल्चर को आने वाला है, ये नया फाइनेंस बिल जो अभी रिसेंटली आया है, इसमें 20% GST सीड पे इम्पोज कर दिया गया है। तो उसका सबसे पहला जो धचका है, ये हमारे जो अभी कॉर्न का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है मकई का,
इसको लगेगा क्योंकि ये जो भी कंपनी रेट्स थे उस पर 20% GST एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इसका हमारी जो ज़राअत है, जो एग्रीकल्चर है, उस पर बहुत नेगेटिव और बहुत तबाहकुन असरात सामने आने वाले हैं। तो अभी जैसे ये पिक्चर क्लियर होगी कि क्या ये जो GST है ये हमारी लोकल सीड जो प्रोडक्शन है उस पर भी लगेगा, क्योंकि हमने जो फिनांस बिल आया उसे बड़ा डिटेल स्टडी किया है। उसमें जहाँ जिस शिक में ये शामिल किया गया GST, उसमें कहीं भी लफ्ज़ इंपोर्ट नहीं यूज़ किया गया। तो अगर सीड्स पर लग जाता है तो ये इसके नुकसानात जो हैं हमारी एग्रीकल्चर पे, हमारी प्रोडक्शन पे, हमारी इकॉनमी पे, क्योंकि पाकिस्तान 70% ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे बेस करता है। तो एग्रीकल्चर सारी सीड पे बेस करती है, फसल का जो बेसिक कंटेंट है वो सीड होता है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर अगर ये GST बढ़ता है तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें कोई भी चीज़ काश्त करनी है उसके लिए बीज तो डेफिनेटली चाहिए, उसके बगैर कोई भी काश्त हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में 3-4 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसे हम रवायती काश्त कह सकते हैं। तो उस रवायती काश्त से निकल कर क्या ज़मीन इस काबिल है कि इसे गैर रवायती काश्त में बदल सकें? जी, ऑलरेडी डिफरेंट फोरम्स पे हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि आपके चैनल पे ऑलरेडी कई दफ़ा ये सजेशन हमने सामने रखी है और लोगों को अवेयरनेस भी देने की कोशिश करते हैं कि अब पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, हमारे फार्मर को अगर इम्प्रूव करना है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, उसे अगर अर्निंग की तरफ जाना है तो उसे रवायती काश्तकारी से निकल के गैर रवायती काश्तकारी की तरफ आना पड़ेगा। तो इसे हम टेक्निकल टर्म में स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट नहीं किया जाता तो हमारा किसान ऐसे ही पिसता रहेगा। आप देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है कि कोई भी अगर जो रवायती फसल है, अगर आपको 30 से 40 हज़ार एक एकड़ में से वो प्रॉफिट दे रही है, तो आप अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, आप अगर बेहतर चीज़ों की तरफ जाते हैं तो वो आपको मैनी टाइम्स उसे बेहतर अर्निंग दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे बेसिक नीड है। तो अगर हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाते हुए अपनी जो रवायती गंदम को छोड़ देते हैं तो गंदम का इंपोर्ट बिल उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें इसको साथ लेके चलना है। उसके साथ साथ एक सेगमेंट स्मार्ट जो एग्रीकल्चर के हवाले से या एक सेगमेंट को ज़िम्मेदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। किसान रहनुमा भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगी। आप मुझे बताएं कि जैसे किसान हमेशा शिकवा करते नज़र आते हैं, कभी खाद का प्रॉब्लम होता है, कभी बीज महंगा मिलता है, कभी बीज टाइम पे नहीं मिलता है, तो क्या समझते हैं कि कौन है आखिर जो इनकी प्रॉब्लम्स को हल करेगा? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ही किसानों की जो है वो प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। और हर हुकूमत जब इलेक्शन का आगाज़ करती है और वोट लेने के हवाले से वो किसानों के पास जाती है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ज़्यादातर आबादी अभी भी देहातों में रहाइश पजीर है और 65% जो हमारी आबादी का जो है वो तबका ज़राअत से उसका तल्लुक़ है। तो जब वोट लेने हुकूमत किसानों के पास जाती है तो वो बुलंद बांग दावे करती है कि हम एग्रीकल्चर को ऊपर लेके जाएंगे, हम ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करेंगे और हम खादें सस्ती करेंगे, हम सब्सिडाइज़ जो है वो एग्री इनपुट्स देंगे। ये सारी चीज़ें उनके वादों में और उनके मंशूर का एक हिस्सा होती हैं। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो ये जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं इनके वो हत्थे चढ़ जाती है हुकूमत और फिर वो जो है वही टैक्सेस की भरमार, वही जो है वो जो है गन्ने की पेमेंट का ना होना और खादें जो है वो महंगी और डीज़ल महंगा, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल आखिरी इस हुकूमत ने एक नया ढोंग रचाया हुआ है। ये किसान कार्ड के हवाले से, जिस तरह हेल्थ कार्ड था इसी तरह किसान कार्ड जो है वो बड़े बुरे तरीके से पिटा है। किसी भी गांव में किसी चंद एक ज़मींदारों को अगर किसान कार्ड के ज़रिए से कोई चीज़ को खाद पे सब्सिडी मिली है तो वो बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है। बाकी सारे ज़मींदार हैं वो महंगी खाद लेके डाल रहे हैं अपनी गंदम को, और ऊपर से ये जो है वो यूरिया का बहरान, ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा मसला बना रही हैं एक ज़मींदार के लिए। और वो जो है वो सोच रहा है कि अब वो ज़मींदार से हट के मुतबादल ज़राए पे शिफ्ट हो जाए जिसमें मुनाफा भी ज़्यादा है। इस तरह पूरी वर्ल्ड में सिर्फ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें ज़मींदार और ज़राअत को इस तरह नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि ज़राअत का शुमार हमेशा जो है वो सर्विसेज में आता है, ये बिज़नेस नहीं है। और पूरी दुनिया में इसे सर्विसेज का ही दर्जा दिया जाता है और इसके लिए जो है वो
जो है वो अकोमोडेट किया जाता है ताकि ज़मींदार जो है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक रहे। अच्छा, अगर हम जहाँ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से नहीं देखा जाता किसानों के मसाइल को, जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने भी अभी बात की स्मार्ट एग्रीकल्चर की, कि रवायती से गैर रवायती हम काश्तकारी की तरफ अगर मूव कर जाएँ तो इससे किसान को भी फ़ायदा है। क्या किसानों को उस तरह से अवेयर किया जा रहा है कि आप 3-4 फसलें उगाने की बजाय अगर मूव कर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है? हाँ जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब सूरत हाल वैसी नहीं रही। जो किसानों के जो नई जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, वो यूनिवर्सिटीज़ में चली गई है और उसने जो है वो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में जो है वो अच्छी जो है एजुकेशन और अच्छे नुमाया कारहाय नुमाया असर अंजाम दिए हैं। लेकिन मसला यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। रवायती जो है ज़मींदारा वो रवायती अंदाज से ही उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ही हम इसको स्मार्ट एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होते हैं तो जो बहुत बड़े जो है वो एकदम जो है वो वसाइल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ना तो हमें बैंक लोन देने के लिए तैयार होते हैं और ना ही हुकूमत किसी किस्म की कोई सब्सिडी देने के लिए भी तैयार है। ज़राई बैंक जो है वो पहले ज़मींदारों को 9% के हिसाब से लोन दिया करता था, लेकिन अब उसने वो बढ़ा के 13% कर दिया है और वो भी सम टाइम जो है वो 14 और 15% पे चला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ज़मींदार को वसाइल प्रोवाइड करें, उसको बिलासूद कर्ज़ा दें और फिर यह है कि जो बुनियादी चीज़ें जिसके बाद जो है वो रवायती ज़मींदारा छोड़ के जो है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर पे या जदीद ज़राअत की तरफ रुजू करे, उसके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, जो मशीन दरकार होती है, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो अगर प्रोवाइड करें तो हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें और जो है अपनी ज़राअत को वो दुनिया में जो है नुमाया कर सकें। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि आखिर वजह क्या है कि हुकूमत जो है वो ज़राअत के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी क्यों नहीं बना सकी? हाँ जी, ये असल में ना प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ज़मींदार जो है वो तरक्की करे या उसको अकोमोडेट किया जाए तो लामहला आपको जो है वो जो है मुख्तलिफ जो ताजिर हैं या बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं उनका थोड़ा सा मफादात को ना पीछे करना पड़ता है और ज़मींदार को आगे लाना पड़ता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत और ये जितनी भी हुकूमतें इससे पहले गुजरी हैं वो ज़मींदार से ज़्यादा ताजरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हालांकि जितना भी रॉ मटीरियल है उसको प्रोवाइड करने वाला जो है वो ज़मींदार है। अगर ज़मींदारा ही ख़त्म हो जाए और किसान ही अपने शोबे से जो है वो दूर चला जाए या बदजन हो जाए तो ये सारी चीज़ें जो है उनका बिज़नेस वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसे ही है कि ज़राअत को बेहतर करने के लिए पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हुकूमत अभी तक सही से बना नहीं सकी। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले टाइम में ज़राअत बेहतर हो, किसानों को खुशहाली मिले। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।